Hi everyone, welcome to today's video. Today we would be talking about something which is known as buyback, and we would be understanding a very interesting strategy which could be used in stock market for making profits. Now, of course, not an investment advice, but this is one of the strategy that can be used for generating decent amount of profits. So buyback is actually the company for example, if you take example of Infosys. If you have Infosys, what you have to do is what the company does is it tries to buy back its own share. So what exactly happens is that I am very confident about my business. I'm very confident about a new strategy or a new product that I'm developing. So because of that, the directors or the management of the company is quite bullish about the stock, so it buybacks its own stocks. So it is also known as share repurchase. And this also what happens is, suppose you have 75% stocks floating in the market. What will happen is, if the company makes a buyback of 5%, now only 5% of the stocks will be floating in the market. So what could be an advantage of reducing the stock from 75% to 70% in the market? Anyone? Ayush, Now, when the Ayush. price when the price will increase, they won't share as much profit with the people. They can have it with themselves. Correct. And regarding demand and supply, what When will happen? people observe, Will when the people demand will observe, will the when the demand people increase, or will the supply increase? demand will increase as everyone will be bullish because they will see that the company is buying its own stock. So Mhm. they will say ki there is something big coming up, or they are so much confident about their stock. So obviously the price is gonna rise. Absolutely. And also, Ayush, if you look at it in a second way, you'll see that pehle agar market mein there were around thousands shares floating, or say 75 shares floating. Now there are only 70 shares floating. Supply वही sorry, demand वहीं के वहीं है. जितने लोगों को वो स्टॉक खरीदना था, वो 100 लोग, सपोज करो 100 लोग थे जिनको वो स्टॉक खरीदना था, वो 100 लोग वहीं के वहीं है. बट अब मार्केट से सप्लाई को घटा दिया गया, सॉरी, सप्लाई को घटा दिया गया. सप्लाई को जहां 75% थी, उसको अब 70% बढ़ा दिया गया, बना दिया गया. तो सप्लाई की शॉर्टेज कर दी गई और डिमांड वहीं की वहीं है, तो उस वजह से भी ना स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है. ठीक है. सो व्हाई एग्जैक्टली डज द बायबैक हैपन? बायबैक हैपेंस टू गेन अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंपनी. कि भाई मेरे पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे मेरी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली है, या ऐसा कुछ नया कोविड वैक्सीन का मैं कोविड वैक्सीन का मैं जो है कोविड की वैक्सीन बनाने वाला हूँ, या कुछ बनाने वाला हूँ जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है. उसकी वजह से व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय बैक माय ओन शेयर्स. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल buy back its own share. So that is why generally buyback is done. And what are the inferences that you can derive out of the buyback? So basically, the management is very confident in its operations. We discussed that. Then there are some huge news which is about to hit. If a company is buying back now, then definitely there's some huge news that the company will share with the market in the coming time. That is why the management of the company has very confident in its stock, and that is why it is buying back. दूसरा ये भी रहता है कि यार कंपनी के पास, कंपनी बाय बैक करेगी तो बेसिकली मार्केट में से उसी का शेयर वापस खरीद रही है, राइट? इसका मतलब ये हुआ, अगर कंपनी जो है 5% भी बाय बैक करती है, 1% भी बाय बैक करती है, उसके पास एक्स्ट्रा कैश है. उस एक्स्ट्रा कैश की वजह से, बजाय कि वो डिविडेंड्स देने के बजाय कुछ करने के, वो कंपनी में ही वापस लगाना चाहती है, और कंपनी में एक नया कॉन्फिडेंस स्टार्ट करवाना चाहती है. तो वो उससे एक कंफर्मेशन ये भी मिलता है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑब्वियसली हो रही है, जिसकी वजह से उसने सप्लाई घटा दिया, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. ठीक है. अब हम ये समझते हैं कि हाउ डज द कंपनी फंड्स द बायबैक, कि भाई उसके पास पैसा कहाँ से आता है इस बायबैक को लेने का. क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि भाई 5% शेयर खरीदना किसी भी एक बड़ी कंपनी का, सपोज करो इन्फोसिस का, या 1% 2% भी शेयर खरीदना किसी एक कंपनी का, कोई बहुत छोटी बात तो नहीं होती है अगर कोई कंपनी बायबैक ले रही है तो. सो बेसिकली वो कंपनी उतने पैसे लाती कहाँ से? तो
अच्छा, और बायबैक जो होता है, अगर कोई भी स्टॉक 1,000 रुपए का हो रहा है ना, मतलब आज के दिन 1,000 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं ना, तो जनरली जो बायबैक्स होते हैं उसके, वो 1,100 रुपए या 1,050 रुपए, मतलब करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे ही कंपनी बायबैक करती है। भाई तभी तो लोग बेचेंगे ना, सीधी सी बात है। कंपनी बायबैक कब कर सकती है? जब लोग बेचने के लिए तैयार होंगे। लोग बेचने के लिए तैयार नहीं है तो कंपनी कहाँ से उसको वापस खरीदेगी? तो जनरली क्या किया जाता है, अगर 1,000 रुपए का स्टॉक है तो भाई कंपनी बोलती है मैं इसे 1,010, 1,050 रुपए, 1,070 रुपए, 1,100 रुपए इतने पे खरीदूंगी तुमसे। तो तुम्हें भी एकदम से 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, और हमें हमारे शेयर्स भी वापस मिल जाएंगे। तो जनरली कंपनी फंड कैसे करती है इन बायबैक्स को? सो कंपनी के पास जनरली अगर खूब सारा कैश रखा होता है ना, तो वो उस कैश को पब्लिक में दे देती है कि भाई ये तुम पैसा पकड़ो और हमें हमारे शेयर्स वापस दे दो। या फिर दूसरा वो क्या करती है कि डेप्ट लेती है। डेप्ट का मतलब क्या हो गया? वो बैंक्स वगैरह से लोन लेगी या कहीं से लोन लेगी, उसके एसेट्स गिरवी रख के, और वहां से वो पैसा जनरेट करेगी, और पैसा जनरेट करके उसके बाद अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेगी। या फिर करंट ऑपरेशंस वगैरह जो उसके चल रहे हैं, जो बिजनेस वगैरह से उसके पेमेंट्स वगैरह आने वाले हैं, या कुछ भी उसका रनिंग कैश जो इन हैंड है उसके पास, जो भी ऑपरेशंस वो कर रही है, उस कैश फ्लो से भी कंपनीज बाय बैक करती हैं। अब कंपनी क्या हमेशा अगर बायबैक करे तो अच्छी चीज होती है? नॉट रियली। क्योंकि अगर मान लो पूरी इकोनॉमी ही गिर रही है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, या इन्फ्लेशन चल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज चल रही है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी ही डाउन है, तो उसकी वजह से भाई सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो आपकी कंपनी भी गिरेगी। आपकी कंपनी कौन सी कोई महारथी है या कुछ वो है? पूरा मार्केट गिर रहा है तो अमूमन सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं तो मोस्टली मार्केट गिरेगा ही, उसके साथ आपकी कंपनी भी गिरेगी। उसके बाद अगर कोई कंपनी अगर कर्जा लेके उसकी शेयर्स को बायबैक कर रही है, सो ये एक थोड़ा रिस्की सा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि यार कंपनी के पास पैसा है नहीं, तुम्हारे पास नई चीजें करने के लिए पैसे हैं नहीं, तुम्हारे पास कुछ नया इनोवेशन वगैरह करना चाह रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, तभी तो तुम बायबैक कर रहे हो ना यार। अब तुम्हारे पास उसके लिए पैसे नहीं है, तुम कर्जा लेके और बायबैक कर रहे हो अपने शेयर्स को, तो ये थोड़ा डाइसी या रिस्की मोमेंट हो जाता है कि भाई हमें मतलब फिर कॉशियस रहना चाहिए कि भाई एक्चुअल में शुड वी गो फॉर दिस बायबैक और नॉट। बायबैक कभी कभार ना इन्फ्लेट करने के लिए भी किया जाता है प्राइस को, कि भाई कंपनी बहुत ज्यादा डूब रही है, डूब रही है, डूब रही है, तो अब क्या करें भाई, कंपनी के प्राइस को बढ़ाना है। अब सबको मालूम है बायबैक का कॉन्सेप्ट, अगर कंपनी बायबैक देती है तो भेड़ चाल में हर कोई बायबैक में खरीद लेगा। तो कंपनियां क्या करती हैं कि भाई हम बायबैक कर रहे हैं हमारे शेयर्स को, तो लोगों को क्या लगता है कि यार इस कंपनी में कुछ मजेदार होने वाला है, कुछ नई चीज आने वाली है, इसीलिए कंपनी ना बायबैक कर रही है अपने शेयर्स को। तो वो प्राइस इन्फ्लेट करने के लिए भी कई बार बायबैक करती है। तो मतलब लोगों को लगेगा कि भाई कंपनी बायबैक कर रही है, तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, खूब सारे खरीद लेंगे स्टॉक्स उस कंपनी के, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई एकदम कम हो जाएगी, डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो उसका स्टॉक प्राइस जो होता है वो एकदम से बढ़ना शुरू कर देता है। और फिर भेड़ चाल तो होती है मार्केट में कि 10 लोगों ने खरीदा तो उसके पीछे पीछे 100 लोग तो खरीदते ही हैं बिना कुछ स्टडी किए। तो उस वजह से कंपनीज कई बार करती हैं, कई बार क्या करती हैं, ऐसे उल्टे सीधे रीजंस की वजह से भी बाय बैक देती हैं। देन कंपनी के पास अगर मान लो एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ भी है, और मान लो कि फिलहाल कंपनी के पास कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ इनोवेशन वगैरह करने के लिए है नहीं, बट सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहती है कि वो डिविडेंड्स उसके स्टॉक मतलब उनके जो मैनेजमेंट है या उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है वो डिविडेंड्स प्रोवाइड करे या प्रॉफिट प्रोवाइड करे, वो नहीं चाहती है। तो वो क्या करती है भाई, पैसा पड़ा हुआ है, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा लो कंपनी की, पब्लिक से पैसा, पब्लिक से स्टॉक्स खरीद लो। तो वो क्या करती है उस चक्कर में भी, उसके पास कोई आउट ऑफ बॉक्स इनोवेशन वगैरह कुछ सोल्यूशन होता नहीं है, बट क्योंकि एक्सेस में सरप्लस मनी पड़ा हुआ है, तो उठा के वो बायबैक स्कीम चला देती है, जिसकी वजह से मतलब लोगों को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है इसमें। सो बायबैक इज नॉट ऑलवेज गुड, बट इफ यू स्टडी इट प्रॉपरली कि भाई कंपनी सच में क्या इनोवेट कर रही है, अगर उसकी वेबसाइट्स वगैरह पे जाके देखोगे कि भाई कुछ नई चीजें क्या आ रही हैं कंपनी के अंदर, कुछ ऐसी खतरनाक सी चीज लेके आ रही है क्या वो, या उसके आप जो है बायबैक क्यों कर रही है कंपनी, उसका पूरा डॉक्यूमेंट होता है उसको पढ़ोगे, उसके प्रीवियस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उसकी बैलेंस शीट्स वगैरह देखोगे कि हाँ यार कंपनी में दम तो लग रहा है। अगर कंपनी में दम लग रहा है और ओवरऑल मार्केट दिख रहा है कि यार मार्केट भी बढ़ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद के मेरा बीटा बढ़ा सकता हूँ, कि भाई मार्केट मेरा जो है वो 1% से बढ़ रहा है, तो कम से कम ये स्टॉक मुझे 2%, 2.5%, 3% तक का एक मुनाफा दे सकता है।
प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा बजाय कि किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के, और मैं इस बायबैक को देखूंगा अपने तरीके से, अच्छे से उस स्टॉक की स्टडी करके। ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स थे यार जो कि बायबैक से रिलेटेड थे। फॉर एग्जांपल जाइडस लाइफ साइंस ने अभी अभी रिसेंटली 23 जून को इसका बायबैक अनाउंस किया था। तो हम 23 जून से देखते हैं इसमें बेसिकली हरकत क्या हुई थी। देखो जाइडस लाइफ साइंस कौन कौन जानता है? पुणे वाले, पुणे वाले कौन कौन है? आयशा, अलीना एंड आयुष। जाइडस लाइफ साइंस, तुमने वो वेलनेस सेंटर देखे हैं पुणे में, कल्याणी Yes, नगर वगैरह में 24 आवर्स वेलनेस सेंटर जो खुले रहते हैं? yes, yes. रूबी क्लिनिक टाइप क्या? नहीं, कल्याणी नगर में अलीना वो जो राहेजा वुड्स था ना, उसके जस्ट पीछे देखेगी तू, जो फोर्टलेजा कॉम्प्लेक्स था उसके पास 24/7 हमेशा खुला रहता था एक वेलनेस सेंटर टाइप। ओके। तो Wellness उस टाइप के, forever. वेलनेस फॉर एवर, एग्जैक्टली। सो दैट इज एक्चुअली सब्सिडी ऑफ जाइडस लाइफ साइंस। सो इट्स अ वेरी वेल नोन स्टैब्लिश ब्रांड, इट्स अ गुड फर्म, राइट? अब अगर आप देखोगे 23 जून को जब से इसका बायबैक ऑफर हुआ था, तब से लगभग ये 4-5% चढ़ चुका है। सो अगर मैं इसको लेता तो एटलीस्ट मुझे पिछले कुछ हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में, मुझे मेरा 4-5% रिटर्न तो मिल ही जाता। देन लेट्स लुक एट अदर, एंड हालांकि अभी तक बायबैक हुआ नहीं है इसका, अभी भी इसका बायबैक बाकी है होना। उसके बाद लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स। इमामी लिमिटेड। अब हम ना थोड़े मतलब इसके, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इसके अच्छे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बट आई वांट यू गाइस टू बी कॉशियस। मतलब इस तरीके के एग्जांपल आप गूगल करोगे ना, मतलब गूगल पे देखोगे पास्ट में कितने बायबैक्स हुए हैं, उस हिसाब से जितने अच्छे स्टॉक्स होंगे ना, वो अच्छे स्टॉक्स जनरली आपको अच्छे रिटर्न्स दे देंगे बायबैक में। बट हम थोड़े कॉशियस होके चलते हैं और उन स्टॉक्स को देख के जो कि एक्चुअली काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, बट उन्होंने उनका बायबैक एक्चुअली फेल हुआ है, और क्यों हुआ है हम उन रीजंस को भी देखेंगे कि भाई व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स बायबैक फेल्ड। एवरीवन नोज इमामी। कोई यहाँ पे है जो इमामी को नहीं जानता है? इमामी के साबुन वगैरह आते थे यार। Cream sabun. इमामी के, राइट? तो उसने क्या किया था कि उसने फेब 9 फेब को बायबैक अनाउंस किया था कि भाई मैं जो है वो 8 अगस्त को मेरे स्टॉक्स बायबैक करूंगी। बट तब से अगर आप देखोगे ना तो प्राइस इसका गिर रहा है, काफी हद तक गिर चुका है, एटलीस्ट 18 to 20% गिर चुका है। कोई रीजन बता सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी इमामी, और उसने जब बायबैक अनाउंस किया फिर भी उसके स्टॉक्स गिरे क्यों? एनीवन? Other brands are leading in the market. वन रीजन। इसके लिए हमें इसके वो देखने पड़ेंगे, बैलेंस शीट्स वगैरह देखने पड़ेंगे कि भाई इमामी कैसे परफॉर्म कर रही है। दैट्स एन एक्सेलेंट आंसर आयुष। बट ओवरऑल मार्केट देखोगे ना तो इसने अनाउंस कब किया था? 9 फेब में, और दिसंबर से मार्केट गिर रहा है। समझ रहे हो? इस वजह से ये भी, इसका बायबैक भी उतना चल नहीं पा रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि 8 अगस्त के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो ये हल्का सा इसने बुलिशनेस दिखाई है, राइट? अब ये बुलिशनेस, अब ये 8 अगस्त के आसपास देखना पड़ेगा कि भाई तब तक ये स्टॉक बुलिश बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो हम इसके हम इसके बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह देखेंगे और देखेंगे कि भाई इसने एक्चुअली में कैसा परफॉर्म किया। अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो this could be a chance of buying Imami, although the whole market is going down. So I won't invest all of my money inside Imami, but I can say roughly 1% of my portfolio, 2% of my portfolio, I can invest into Imami. ठीक है। नेक्स्ट, गेल। अच्छा, गेल को अगर आप देखोगे इसने 25, एवरीवन नोज व्हाट गेल इज। इट्स अ No, I don't गवर्नमेंट know. फर्म। इट्स अ गवर्नमेंट फर्म, ठीक है। वन ऑफ द पीएसयू, पीएसयू तो सब जानते हैं क्या होती है। ऑयल की कंपनी है, हम्म ऑयल वगैरह। पीएसयू कंपनीज वो होती हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, मतलब जो गेट वगैरह की एग्जाम दे के आप कंपनीज में जॉब कर सकते हो ना, गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, बट मतलब बड़ी जायंट्स होती हैं जो इंडिया को चलाती हैं, बट ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। सो गेल इज वन ऑफ द पीएसयू। ऐसे ही कोल इंडिया और दूसरी कंपनीज आती हैं जो इनके एग्जाम्पल में आती हैं।
सो कभी भी ना बायबैक्स वगैरह गवर्नमेंट कंपनी में जनरली ये देखा है, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट जनरली मैंने ये देखा है और दूसरे लोग भी यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर से जनरली दूर रहना चाहिए। ये कंपनीज ऐसी होती है ना, ना ज्यादा प्रॉफिट देती हैं आपको, ना कभी लॉस देती हैं। और मतलब ये कभी ग्रो करने के लिए, क्योंकि अब हमें सबको ही मालूम है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं, वो सरकारी नौकरी जो होती है वो किस तरीके की होती है, इस वजह से कभी भी ग्रो करने के लिए इन कंपनीज को नहीं बनाया जाता है। तो जनरली पीएसयू से दूर रहना चाहिए। इस वजह से आप देखोगे कि 25 मई, एक तो वो भी कि मार्केट ऑलरेडी डाउन जा रहा है, बट उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो 25 मई से अगर आप देखोगे तो भी ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली फॉल ही कर रहा है, और 10% से ये स्टॉक फॉल कर चुका है। सिमिलरली जस्ट डायल को अगर आप देखोगे तो 23 सितंबर 2021 से मतलब इसने अनाउंस किया था इसका बायबैक, और तब से आप देखोगे तो तब से वो गिरा ही है, अक्टूबर नवंबर हर वक्त गिरा ही है वो। रीजन बीइंग, जस्ट डायल एक जमाने में काफी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स थे इसके। उस समय क्या होता था कि भाई जस्ट डायल, अमिताभ बच्चन वगैरह भी काफी ऐड करते थे, जो 90s के होंगे उन्हें मालूम होगा कि भाई अमिताभ बच्चन वगैरह इसके ऐड किया करते थे। प्लस मतलब काफी मार्केट इसने कैप्चर करके रखा था जस्ट डायल ने। इट वाज जस्ट लाइक येलो पेजेस, अगर किसी को याद हो। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ इतना पुराना होगा जिसको येलो पेजेस मालूम होंगे, बट येलो पेजेस को इसने मतलब इसने डिस्टर्ब किया था और जस्ट डायल आया था। जिसमें कि आप किसी भी, आपको लोकल हार्डवेयर से लेके मिस्त्री से लेके रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाती थी। फिर उसके बाद गूगल वगैरह आ गया, इतना चल नहीं पाया स्टॉक। तो इस स्टॉक ने बायबैक ऑफर किया था, और इसका बायबैक भी चल नहीं पाया, क्योंकि अगर इसके आप फाइनेंशियल्स देखते हैं ना, तो इसके फाइनेंशियल्स कुछ अच्छे नहीं थे, कंपनी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अगेन दिस buyback failed. There are a lot of examples, ample of examples actually, in which buyback actually worked, but I'm showing you where buybacks failed and why it failed, so that ऐसा ना हो कि यार आप blindly बस किसी का buyback आया और आपने उसको ले लिया, ऐसा मत करना। Look at the financials, look at different parameters, based on that judge कि भाई इसका buyback actually buy करने लायक, मतलब buyback अनाउंस होने के बाद ये स्टॉक सही में खरीदने लायक है या नहीं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस। इन्फी हर कोई जानता है यहाँ पे, आई थिंक हर कोई आईटी से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, एवरीवन नोज इन्फी, राइट? पीपल सो गए? Yes, we know. Yes. यू नो इन्फी, राइट? तो इन्फी में क्या हुआ था, 25 जून को इसका बायबैक अनाउंस हुआ था कि भाई 24 दिसंबर को हम हमारा मतलब हम बायबैक ले लेंगे, हमारे शेयर्स बायबैक कर लेंगे। तो देखो, जिस ड्यूरेशन में वो बायबैक आया था, उस ड्यूरेशन में लगभग इन्फोसिस जो है वो 6-6.5% बढ़ा था। नाउ एवरीवन नोज ओवर हियर, ये तो मैं मतलब बोल ही सकता हूँ, बजाय आप भले आप स्टॉक मार्केट में हो या ना हो, आप ये बता सकते हो कि भाई इन्फी इज अ वेरी गुड कंपनी। कोई, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, बहुत पुरानी कंपनी है, इसका मैनेजमेंट काफी अच्छा है, एवरीवन नोज इन्फी, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। सो दैट्स वाई देखो, जब भी जैसे ही उसका बायबैक आया ना, उस पर्टिकुलर पीरियड में ही उसने 6-6.5% का रिटर्न दे दिया था। बट द क्वेश्चन विच आई वुड लाइक लव यू गाइस टू आंसर इज, उसके बाद ये स्टॉक गिरा क्यों है? और लगभग आप देख लोगे कि ये स्टॉक 2000 के आसपास टच कर रहा था, और 2000 से अब 1400 के आसपास है। एनीवन, ये स्टॉक गिरा क्यों है? Recession in the market. It's falling गुड around यार आयुष, 2020, March 2020. गुड यार आयुष, गुड, एकदम सही। पूरा मार्केट ही गिर रहा था, उसकी वजह से वो मार्केट गिर गया, उसका बायबैक फेल हो गया। वरना अगर पूरा मार्केट उठ रहा होता तो ये और आगे जाता और ज्यादा उठता। बट इवन ड्यूरिंग दैट, जब मार्केट अच्छा खासा चल रहा था और उसने बायबैक अनाउंस किया था, तब भी देखोगे कि अगर आपने, जब अनाउंसमेंट हुई थी ना, तब भी आप लेते तो 6-6.5% का प्रॉफिट आपको हो चुका होता है इन्फी में, विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। ठीक है, नाउ आई लव यू गाइस टू आंसर। एवरीवन नोज इंडिया मार्ट, क्या काम करता है इंडिया मार्ट? Buy and Grocery sell. store, I guess.
नहीं, ग्रोसरीज नहीं। अलीना तू सही बोल रही थी। अलीना क्या बोल रही थी? Buy and sell forum for local market. यस, बेसिकली होलसेलर्स का अमेजोन है ये। जैसे अलीबाबा है ना, उसी तरीके से इंडिया का इंडिया मार्ट है। सो बेसिकली आपको बल्क में कुछ भी परचेस करना हो, बल्क में कुछ भी सेल करना हो, आप इंडिया मार्ट पे बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट इंडिया मार्ट इज। सो यू विल सी दैट इसने एक्चुअली अनाउंस किया था कि हम 2 जून को 2 जून 2022 को हम बायबैक ऑफर करेंगे। ठीक है, और 15 जून को हम हमारे स्टॉक्स बायबैक कर लेंगे। Would you have invested in this stock or not No, during the buyback? No. Why? the stock price is already falling, so mm, I guess the company is going in loss, so I won't Yes. take a risk. Yes. Although you will look at financial statements and balance sheets, you will look at everything, but still you can see that the company has already fallen from its high to with at around 58%, 60%. The company has already fallen. So what I'll do is I'll not directly say yes or no. I'll look at the company's balance sheets and everything, because what you'll see is it has started falling from roughly November, December. हालांकि ये और पहले से गिरना शुरू हो गई है, नवंबर के भी पहले से गिरना शुरू हो गई है, अक्टूबर से गिरना शुरू हो गई है, और मार्केट जो था वो करीब यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। सो देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल, अदर फैक्टर्स एज वेल, जिसकी वजह से एकदम से ये स्टॉक क्रैश हुआ है यहाँ पे। बट आई विल लुक इनटू कि भाई ये कंपनी बायबैक ऑफर क्यों कर रही है, क्या रीजन है, क्या लॉजिक दे रही है कि भाई मैं बायबैक क्यों कर रही हूँ मेरे शेयर्स को। इज देयर एनीथिंग, एनी इनोवेशन दैट इज इट इज कमिंग अप विद? इज देयर एनीथिंग वेरी समथिंग दैट्स गोना डिस्टर्ब द मार्केट कि भाई सपोज करो इसके साथ साथ बल्क के साथ साथ अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इंडिया मार्ट ऐड करेगा या समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ हो रहा है क्या कंपनी में? इफ यस, देन फॉर अ लॉन्ग टर्म यस, दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे 60% डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है, राइट। बट अगर मैं देखूंगा यार कंपनी की तो बहुत बुरी हालत है, मरी पड़ी है कंपनी, 60% डाउन है, बट इसके फाइनेंशियल्स वगैरह देखोगे तो भाई इसको एक्चुअली 70-80% डाउन होना चाहिए था, तो भाई दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, आई विल कीप अवे फ्रॉम दिस कंपनी। So these are very small ways through which you can guesstimate whether to invest in a stock or not. We are just beginning on how we can get a sense of or get a flavor of whether to invest in a stock or not. Of course, we'll use much more complex method, much more complicated things, but this is just the beginning. So this is how you can get a essence or get a flavor, make a better probable guesstimate about investing in a stock or not. Hope this was the hope you liked this session. Any questions, doubt, comments? This would be a great time to hear those. I have one question. Mhm. Like, I'm not sure. IRCTC stock went quite up, right? Uh-huh. After just lockdown. So, if I'm not sure, वो public से private हुआ था. That was the reason the stock went up, or what was the reason? See, Ayush, that's actually a very good question. Why exactly does a company stocks goes up or down? Basic question. Demand and supply. बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई। अगर कंपनी के भले ही बेसलेस फंडामेंटल्स हो, कंपनी की ना धजिया उड़ी हुई, फर्क नहीं पड़ता है। Oh, I'm sorry, there's a fountain that's going to start, so थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज रहेगी, बट सॉरी अबाउट दैट। देखो, कंपनी की ना चाहे धजिया उड़ रही हो, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट में 1000 लोग खरीदने वाले रहेंगे और अगर मार्केट में सिर्फ 100 शेयर रहेंगे ना, उसकी प्राइस बढ़नी है। सो IRCTC के साथ भी यही हुआ था कि भाई खरीदने वाले इतने लोग थे, उसमें इतने लोग थे, भले कंपनी के फंडामेंटल्स बेकार हो, सब कुछ बेकार हो, बट इतने लोग खरीद रहे थे उसको, इतने लोग खरीद रहे थे, इतना हाइप बना हुआ था उसका कि वो एकदम से बड़ा था। और अगर आप रिसेंटली देखोगे ना IRCTC को, तो आप समझोगे कि यार ठीक है। अगर और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यार जो भी इन्फ्लेटेड स्टॉक होता है ना, कि भाई बढ़ गया वो स्टॉक, बस बढ़ गया किसी तरीके से, अल्टीमेटली मार्केट उसको करेक्ट कर लेता है। देख लो, ये इसका इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेटेड था स्टॉक यहाँ पे, डिमांड बहुत थी, बट भाई लोगों को समझ में आया कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग है ही नहीं,
सब कुछ तो मतलब नेगेटिव में है, कैश फ्लो वगैरह देखोगे, सब कुछ देखोगे, बकवास है उसका। सो अल्टीमेटली मार्केट ने क्या किया, उसको करेक्ट कर दिया, और इनफैक्ट करेक्ट कर ही रहा है अभी भी। सो ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक इन्फ्लेट होता भी है ना, अगर कोई स्टॉक एकदम से बढ़ता भी है बिना सर पैर के, तो मार्केट अपने आप उस चीज को करेक्ट कर देता है, या अपने आप देखोगे कि वो चीज नीचे आएगी आएगी। सो ये एक एक्चुअली अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो जाता है कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है ना, उसके फंडामेंटल्स वगैरह देख लो कि भाई उस कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह सही में है स्ट्रांग या नहीं है। अगर नहीं है तो स्टॉक ने गिरना है, हमने सिर्फ वेट करना है कि भाई ये स्टॉक कब गिरेगा, और जब गिरना शुरू होगा तब हम उसको शॉर्ट करके और अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। समझा? But if we see in small term, like small term investment, so we should go with that risk. Like everyone is buying in IRCTC, so we should buy. We should profit 5%, 2, 4%, and get out of the market. नहीं आयुष, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट स्ट्रैटेजी। यू डोंट नो टिल व्हेन द स्टॉक विल राइज, राइट? तुम्हें ये जरूर मान में देखो, तुम्हें ऐसे गेस करने हैं जो कि तुम्हें स्ट्रैटेजिक गेस करने हैं, जो कि हमेशा मतलब जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही होंगे। अब तुम्हें नहीं मालूम है ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। अब सपोज कर कि तूने इसको इस लेवल पे बाय किया होता कि भाई मैं 5% या 2% लेके निकल जाऊंगा, और स्टॉक गिर जाता, तो तेरा तो नुकसान हो जाता ना भाई। बट अगर तुझे मालूम है कि भाई ये स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको वॉच कर कि भाई ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने दो, बढ़ने दो। मैंने देख के रखा है कि इसकी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है कंपनी के, और वैसे भी ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसका काम एक्चुअली ग्रो करना नहीं है। तो मैं वेट करूंगा कि भाई इसको गिरने मतलब इसको बढ़ने दो। कहाँ तक चढ़ेगा? कुछ हद तक चढ़ेगा ना, लोग कहाँ तक चढ़ा पाएंगे, कुछ हद तक चढ़ा पाएंगे ना। फिर जब मैं देखता कि भाई इतना करेक्शन आ चुका है इसमें, तो मैं यहाँ शॉर्ट कर देता इसको। मैं यहाँ देखता कि भाई बिना तुक की वजह से, बिना किसी रीजन की वजह से स्टॉक बढ़ रहा था, मुझे मालूम है कि भाई अब इसमें करेक्शन शुरू हो गया है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करके अपना यहाँ तक प्रॉफिट लेके और निकल जाता। बस खत्म, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए भी नहीं। फ्यूचर्स में खेलना like it's good, मतलब फीचर्स में इन्वेस्ट करना, future फ्यूचर में इन्वेस्ट futures, करना। like you are saying ना short कर देते, तो we are kind of playing in futures Yes, ना? yes. If you're very confident about it, Ayush, that is when I would say that shorting पे जाना चाहिए या futures में invest करना चाहिए। If you're not a pro, if you're a beginner, definitely futures में आपको नहीं जाना चाहिए। In fact, most of the people यही recommend करते हैं कि future and option से भाई आप दूर ही रहो फिलहाल। But हाँ, if Okay. you're pro, if you start understanding the market movement, once you start understanding कि भाई how does the market exactly moves or what happens, तब you can definitely go for futures. But I would usually recommend कि भाई market ऊपर जा रहा है तभी buy करो। कोई stock जबरदस्ती hype में बढ़ रहा है उसको buy ना करो तो ही बेहतर है। Okay, any other questions, people? Question, comments, concerns?